जो एक्सेंट है वो एक्सेंट के साथ मेरे को मैच करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक हंसने वाली बात हो जाएगी। के साथ गाना कितना टफ है? Very. It was I think very- I'll sing in Hindi and he'll sing in English. We're gonna do that. Oh, तो फिर मतलब that is a collaboration to wait for. Yes. हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने के लिए थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खोलना पड़ता है। वायलेंस दिखा देंगे ना, सेक्स दिखा देंगे तो पब्लिक दौड़ते हुए आ जाएगा। I like Arijit Singh. Oh. I love Shreya Ghoshal. Arman Malik, Zubeen Nadia. ओरिजिनल जो सिंगर गाए थे, अगर वो कैपेबल है तो उससे गवाना चाहिए, कि नहीं तो कंपैरिजन हो जाता है। पहले ही कंपैरिजन होता है कि भाई वो क्या गाए थे, आप क्या गा रहे हो, तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। रील्स जो बनता है ना, रील्स के जरिए जिस आदमी या जिस औरत या जिस लड़की या जिस लड़का वो रील्स को बनाते हैं, वो अपना पॉपुलैरिटी के लिए आपका गाना इस्तेमाल करते हैं। वो फिर उस गाने के ऊपर वो दिखाता है कि मैं क्या किया। If you slap, then it's fine. It's like whatever. But when you sit and then you make them feel like, oh, like the lectures and everything. No offense, but I would get like so sleepy. And then the lectures are the ones that are, you know, like this is how we used to live back in our days, and this is how we used to care about stuff, and you don't care about things. तन्हा सा मैं यहाँ, खुद से मैं क्यों लापता, भीगे से है कुछ अरमा, दिखता ना कोई नशा यहाँ। Cause I'm not sure, insecure, gotta take what I don't get, trial and error make me better, remind me so I don't forget. सर कोलैबोरेशंस तो आपने बहुत जमाने हाँ। से और बहुत सारी की और ड्यूएट्स उस टाइम पे तो ड्यूएट्स कहते थे, अभी जी, तो जी। कोलैबोरेशन वर्ड आ गया, बट कोलैबोरेटिंग विद योर डॉटर वो कितना सेटिस्फाइंग रहा एज अ देखिए, फादर? 7 साल पहले हम लोगों ने एक मैजिकल करके एक गाना किया था, एंड बहुत अच्छा वो हुआ था। एंड इस टाइम जो है ये मैं एक्चुअली नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये गाने का जो अमेरिकन एक्सेंट वगैरह है, तो मैं समझता था कि मैं इंग्लिश गा दूंगा, ऐसा अमेरिकन एक्सेंट नहीं होगा, क्योंकि इनका फॉलोअर्स सब मैक्सिमम अमेरिकन है। इंडियन भी है लेकिन अमेरिकन ज़्यादा है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि जो एक्सेंट है वो एक्सेंट के साथ मेरे को मैच करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक हंसने वाली बात हो जाएगी। तो थैंक गॉड कि मेरी छोटी बेटी जो है वो मेरे पीछे पड़ गया था। करना ही पड़ेगा, वो बहुत ज़िद्दी है, एंड उसकी वजह से मेरे को करना पड़ा, एंड कम आउट नाइसली। बेटी के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। आपको, मतलब वो कारण सॉन्ग्स पे मैंने कमेंट्स भी देखे, मतलब पीपल आर लाइक गोइंग गागा ओवर सानुदा वॉइस की, मतलब याद दिला दिया इन्होंने, 90s याद दिला दिया। Right. सो इनके साथ गाना कितना टफ है? Very. Because he has his own unique style and everything, you know, obviously. So the first thing is like you're collaborating with, you know, him. That's like the huge, you know, nerve-wracking part. And second thing is like he is known for, you know, singing in like what, 15 minutes, 20 minutes, and he's out. Whereas like me, I kind of like take my time, I'll process it out, I'll get into my vibe, but he just gets into it, he gets into the zone and everything. So it's always been, you know, kind of nerve-wracking with him, but at the same time, it's a lot to learn as well. You know, the way that he takes the song and he just turns it into his style. Even in that little section, you know, in 9 to 5, if you can hear it, the Hindi part, he sung it so nicely, so beautifully. You know, he turned that entire track into something completely different, and which is why I think Annabelle and I thought that he would be the perfect fit for the song, and he did absolutely amazing. And obviously, like you said, the views and everybody, they're all loving it. So I think next time we're just gonna, you know, extend a little bit more part and give him a little bit more English into it. तो वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा? I think it'll be in English. It was I think in- I'll sing in Hindi and he'll sing in English. We're gonna do that. Oh, तो फिर मतलब that is a collaboration to wait for. Yes. बट आपको नहीं लगता इनके साथ एक हिंदी में गाना बनाना चाहिए? एकदम बन रहा है Totally. बन रहा है। Yes. वो आग लगा देगा गाना वो I एकदम। think it should be a father and daughter song, and it would be a very emotional, beautiful
song, which will, you know, give all the fathers and daughters out there a little bit, you know, a little just something good to hear. So yeah, I think Hindi song will come soon. I'll have to work on my pronunciation though, because his Urdu and his way of singing is like so solid. So, you know, in that moment, I can't bring my American accent in. नहीं वो तो Yeah. Now she can sing in Hindi. हिंदी बहुत सारा गा चुके हैं एंड बहुत सारा गाना उनका आ रहा है, इन पर पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, लाइक हिमेश हो या शब्बीर अहमद हैं, फिर इधर नीरज श्रीधर है, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इनका गाना अभी सब रेडी हो गया, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, अभी वो सब टाइमली आपको सुनाई देगा, धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे सुनाई देगा। और बहुत सारे लोगों के साथ इनका कोलाबोरेट हो रहा है। तो आपको एज अ सिंगर आपने इनको कितना रेटिंग दिया आपके हिसाब से, अगर हटा दिया जाए कि शी इज कुमार सानू's डॉटर? देखिए, इन हर जॉनरा आई थिंक शी इज 100%, हर जॉनरा। in Hindi definitely I am going to say that it's 85 to 90% because of जैसे कुछ चीज़ें हैं इनको अभी वो इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने के लिए थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खोलना पड़ता है, तो शी विल लर्न दैट। आई थिंक बहुत जल्दी वो सीख पा रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है एंड बहुत जल्दी कैप्चर कर रहा है। येस्टरडे शी sang वन सॉन्ग विथ जावेद अली, जावेद अली के साथ एक डुएट गाना गाई है। जावेद तो इतना तारीफ़ कर रहे थे उसको कि मेरे को प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर ये इसका सही हो जाए, थोड़ा बहुत अभी जो थोड़ा बहुत बाकी है ये ठीक हो जाए, तो आई थिंक कि उनका जो टोनल क्वालिटी है ना, ये बहुत कम दिखता है, बहुत ही कम दिखता है। समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड दैट्स वाई हर चांस इज ब्राइट। अच्छा, वो गाना थोड़ा सा सुन सकते हैं ना जो अभी रिलीज हुआ, जो नया वाला गाना है इनका जिसमें आप गा सकते हैं, कोलैब किया? All right, here we go. गा दो। तन्हा सा मैं यहाँ, खुद से मैं क्यों लापता, भीगे से है कुछ अरमा, दिखता ना कोई निशान यहाँ, 'cause I'm not sure, insecure, gotta take what I don't get, trial and error make me better, remind me so I don't forget, will you let me live the life I want to live, free me from the sins that you commit, cut me up until I'm numb, but I still feel all my regrets, trial and error make me better, remind me so I don't forget. क्या बात है, Thank you. You sing beautifully। और मुझे हिंदी वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा लगा because we connect with I know. हिंदी। so मुझे लगा कि हिंदी में also when you sing, जब आप बात करते हो तो प्रोनाउंसिएशन में अमेरिकन एक्सेंट झलकता है, बट आई थिंक when she is singing तो वो अमेरिकन एक्सेंट कहीं ना कहीं छुप गया है। तो आई थिंक ये सिंगिंग की खूबी होती है, क्योंकि बड़े सारे हमारे सिंगर्स हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं, बट व्हेन दे सिंग तो वहाँ वाला एक्सेंट नहीं आता। यही तो होना चाहिए ना, यही होना चाहिए। अच्छा, व्हाई यू डिसाइडेड कि अमेरिका में जाके सिंगिंग करना है या इंग्लिश गाने गाना है? ये डिसाइड ये लोग नहीं किया, डिसाइड इनके मॉम का था, एंड सम मेरा भी था कि कुछ बेटर लाइफ देने के लिए, एंड बस इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई कैसे करके हम सेटल हो सकते हैं। तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, एंड देन ये तो एकदम सब छोटे छोटे थे उस समय, एकदम ही छोटे, तो इनका डिसाइड ये लोग नहीं किया, हम लोगों ने किया था। It was more like educational purposes, but the music 100%. music was more of a natural, you know, calling because I was raised there. So obviously listening to Western music along with his music. better education, actually better education Got देने के लिए। So that was their first priority. But little did they know that I wanted to become a singer तो as खून well. में है ना।
Yeah, and I Music तो wanted खून to में। follow in his footsteps, but I was so into listening to the Western, style and music environment over there. So it was more of a natural, derive. But I did come back to my roots, and I'm trying to sing in Hindi as well. So, अब वी आर प्लानिंग टू स्टे हियर, यहाँ पे भी गाना है, वहाँ पे भी गाना है, या यहीं पे गाना है? I व्हाट आर द am- फ्यूचर प्लान्स? नो नो, वहाँ पे तो छोड़ ही नहीं सकता, वहाँ पे तो गाते ही रहेंगे वो। शी इज़ कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग। ओके, सो जैसे कमिटमेंट होता है, राइट। जैसे अभी इस समय आए, बहुत सारा कमिटमेंट था, तो आए, सारा कमिटमेंट निपटा के फिर चले जाएंगे। फिर वहाँ भी उनका कमिटमेंट है सब इंग्लिश। अभी कुछ दिन पहले एक इंग्लिश सीरियल भी करके आए, एक शॉर्ट फिल्म शूट करके आए। तो काम वहाँ पे बहुत है, वहाँ पे बहुत सारे काम हैं, गाने हैं, बहुत सारे शूटिंग हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे दो तो तरफ जैसा आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट करते भी हैं कि करना ही भाई पड़ेगा। यहाँ पे भी काम किया, जैसे प्रियंका चोपड़ा ही हैं, वो यहाँ भी आती हैं, वहाँ भी काम करती हैं। काम मतलब बहुत करना सारे हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बाहर जाके भी, एंड आई थिंक हमारे सिंगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म करते ही Yeah. करते हैं उसमें। Right. मतलब अच्छा, वैसे आप हिंदी म्यूजिक सुनती हैं? yes, absolutely. I mean, I listen to his music. I grew up listening to his songs क्योंकि and everything. इसलिए क्योंकि आप वहाँ रहती हैं तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस वही हो जाता ना कि हम म्यूजिक ज्यादा वेस्टर्न ही सुन रहे हैं। तो सर का कौन सा गाना आपको पसंद है, या मतलब ये तो खैर बड़ा टफ क्वेश्चन है, या कौन सा गा सकते हो आप? कौन सा गा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। I know, because his thing is like he sings the most simplest songs ever, but when you actually sing it, it's like that's when you're वेरी like, डिफिकल्ट। वो जब वो wait. गाते हैं तो लगता है बहुत सिंपल है। Yeah, when you're hearing it's like, oh yeah, that's so simple, but when you actually sing it, it's when oh okay, so there was like this little inflection here and stuff. But that being said, two of my favorites, I mean, which everyone is. First is Jab Koi Baat Bigar Jaye, and second is Pehla Pehla Pyar, which I had the opportunity to do a reprise version of it. Can you sing Pehla Pehla Pyar? Okay. Yeah, you can sing. पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोने, पहले ये मुलाकात है, पहले ये मुलाकात है। जो कह रही है आँखें वो कह रही है बातें, जागा तू भी सारी रात है, जागा तू भी सारी रात है। पहला है पहला तेरा मेरा प्यार, है पहला तेरा मेरा प्यार, you got my heart, baby. वाह, Thank you. sang beautifully। मतलब मजा आया आपको हिंदी सुन के, मुझे बहुत मजा आया। Thank you. हिंदी, क्योंकि ये सॉन्ग्स ऐसे हैं ना जो Right. कहीं ना कहीं दे आर इन आवर ब्लड। मतलब ये That's right. आज भी कहीं पे बजेंगे तो इनके लिरिक्स हमको याद होते हैं। आज वाले गाने जो होते हैं वो हम एक दो दिन सुनते हैं और फिर वी फॉरगेट कि ऐसा कोई गाना। बट दीस आर द सॉन्ग्स जो यहाँ पे क्लब्स में, पब्स में भी ये गाने बजते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वही म्यूजिक बजता है एकदम पॉम्प एंड शो वाला। तो दिस म्यूजिक इज वेरी स्पेशल टू अस। अच्छा सर, आप आज के म्यूजिक को किस तरह से देखते हैं, जो आज म्यूजिक बन रहा है? आज भी अच्छा म्यूज़िक बन रहा है, ऐसा नहीं कि ख़राब म्यूज़िक बन रहा है। अच्छा म्यूज़िक आज भी बन रहा है, लेस क्वांटिटी, बट आई थिंक सिंगर्स भी कैपेबल है, बहुत सारे बहुत अच्छा सिंगर्स है। एंड बट जिस तरह के 90s में 100% अच्छा म्यूज़िक बनते थे, जो हमें याद है। अभी वो गाना गाएंगी तो मैं अगली लाइन मैं मेरे दिमाग में है, मैं गा दूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि 100% उस समय था, अभी 40% 50% बेटर आप कह सकते हैं। क्योंकि उस तरह की कंपोजिशन हो या उस तरह के लिरिक्स हो, उस तरह की एक स्टोरी हो गाने के अंदर, नहीं होता है आज। तो इसीलिए जो है स्टे नहीं करता, ज़्यादा दिन स्टे नहीं करता। वो कुछ गाने आते हैं, बस लोग सुनते हैं, 4 दिन बाद भुला देते हैं। बट क्या है कि हमारे गाने इसलिए आज भी हम जब स्टेज पे गाने गाते हैं तो सारे ऑडियंस गाते हैं साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आशीर्वाद है। राइटिंग इज द प्रॉब्लम।
कि वो राइटिंग एंड कंपोजिशन एंड द अदर थिंग्स, जैसे कि जिस पिक्चर में हो रहा है पिक्चर का स्टोरी होना चाहिए, ना तो कुछ भी नहीं होता है, ग्रैंडर दिखाते हैं, डिस्को दिखाते हैं, फिर बाकी किसेस वगैरह ये सब दिखाते हैं। वो अट्रैक्ट करने के लिए ये लोगों ने दूसरा रास्ता चुन लिया। एक इजी रास्ता सामने था, उसको छोड़ के इजी रास्ता था कि म्यूज़िक के ऊपर जोड़ दो, म्यूज़िक को पब्लिकली करो, पब्लिक को म्यूज़िक ही खींच के तुम्हारे थिएटर तक लाएगा। ये जो पहले का जो सिस्टम था, वो सिस्टम में ये लोग वर्कआउट नहीं कर रहा है। ये लोग सोच रहा है कि भाई इतना चेंजेस दिखा देंगे, इतना वायलेंस दिखा देंगे, इतना सेक्स दिखा देंगे, तो पब्लिक दौड़ते हुए आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद कोई नहीं आएगा। और पहला दिन दूसरा दिन चलता है, थर्ड डे से उतर जाता है मूवी। तो ये जो बड़े बड़े मूवीज़ जो इस तरह से मार खा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि वो लोग सिंगिंग को प्रायोरिटी ना दे के सिंगिंग को सेकेंडरी कर दिया। पे आप चलो ठीक है यार, डाल दो एक गाना ऐसा करके। तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। आपके पास सामने आपका अच्छा रास्ता था, उस रास्ते को छोड़ के आप दूसरा रास्ता पकड़ लिया। जल्दी जल्दी कैसे पैसा कमाया जाए, जल्दी जल्दी कैसे। ऑटो ट्यून इज ऑल्सो लाइक आजकल बहुत टेक्नोलॉजी तो छोड़ ही दीजिए, टेक्नोलॉजी तो आजकल बहुत ही उसमें, उसके वजह से क्या होता है कि एक सीरियसनेस जो सिंगर के अंदर होता है, सीरियसनेस और डेडिकेशन जो होता है ना, उससे थोड़ा सा कहीं हट जाते हैं, क्योंकि वो जब जानते हैं कि हम गलत भी गाएंगे तो उससे सही हो जाएगा मशीन के ज़रिए, तो उसके अंदर जो वो जो सीरियस बात होती है ना, कि एक गाना गाने से पहले जो टेंशन होना और गाना गाने से पहले जो एक डेडिकेशन, हम किस तरह से गाने को बेटर करेंगे, उससे वो आज़ाद हो जाते हैं। बोलते हैं नहीं यार ठीक है, वो चलो आज गा देते हैं, वो तो एक एक टुकड़ा भी जोड़ जोड़ के वो लोग कर लेगा, कहीं आउट ऑफ ट्यून होगा तो पिचिंग कर लेगा। तो ये जो पहले से दिमाग में घुस जाते हैं ना कि टेक्नोलॉजी इज़ देयर, तो इसमें हम लोग जो एकॉस्टिक काम किया, यस दैट इज कॉल्ड एकॉस्टिक, एकॉस्टिक जो काम किया, एंड्रॉयड जो पहले हुआ, अभी सब होते थे ना, तो वो सब जो काम हमने किया, उस काम में आज का काम में फ़र्क ये है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे चीज़ें ख़राब हो रहा है। टेक्नोलॉजी होना भी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी की वजह से हमको फैसिलिटीज़ भी बहुत सारा मिलते हैं, और ख़राब भी बहुत सारा चीज़ें होता है। हम ख़राब को ना पकड़ के अगर कोशिश करें कि भाई अच्छे चीज़ को लेके टेक्नोलॉजी को सही रास्ते पे इस्तेमाल करें, तो दैट इज़ बेटर आई थिंक। दैट इज व्हाई यू सिंग लेस नाउअडेज। नो, आई एम नॉट सिंगिंग लेस। मेरा यूट्यूब चैनल खोल दिया मैंने, द कुमार सानू ऑफिशियल, एंड उसमें हर हफ्ता 10 दिन में मेरा न्यू गाना विद वीडियो, 90s काइंड ऑफ सॉन्ग, गुड लिरिक्स, एंड मैं जैसा गाता हूँ। नहीं मतलब इन द फिल्म्स एंड इन द जो आजकल वहाँ पे आपने कम कर दिया, एंड वहाँ पे बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, वो सब अभी डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारे फैंस हमें मिस कर रहा था, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल खोला, एंड दे आर एंजॉइंग। शरण, आपको कौन सा इंडियन सिंगर सबसे अच्छा लगता है आपकी जनरेशन का? सर की जनरेशन का नहीं, वो सब अच्छे हैं। I like Arijit Singh. Oh. I love Shreya Ghoshal. Arman Malik, Zubeen Nadia. I think I've started to kind of like get into like the newer generation music because I usually just listen to like the 90s. But I've been liking their, you know, their songs and everything. And even like the, you know, the music producers like Vishal Shekhar sir, Himesh Reshamiya, Suleiman sir. I think they create like such amazing music, so which is like a blend of, you know, the Western and the Indian culture together. So yeah. आपको आज की जनरेशन का कौन सा ऐसा सिंगर लगता है जो आपको लगता हो कि दिल को छूता है? नहीं, अभी ऐसा आप पूछेंगे स्पेशली किसी के बारे में तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। नहीं स्पेशली नहीं, अगर नहीं किसी के अगर पर्टिकुलर कोई सिंगर को अगर आप सुनना चाहते हैं मेरे से, तो मैं नहीं कहूँगा कि वर्सेटाइलिटी जो है ना, वो अभी तक किसी सिंगरों में 100% नहीं आया। एंड डेफिनेटली सब अच्छा गाते हैं, कोई सिंगर को मैंने नहीं बोलूँगा कि ये दे आर कैपेबल, वो गा सकते हैं, लेकिन उसको उस तरह की सराउंडिंग्स नहीं मिल रहा है, उस तरह के कंपोजिशन, लिरिक्स एंड एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपना आइडेंटिटी ठीक से बना सके। बट टाइप
टाइप सिंगिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो टाइप सिंगिंग इज़ नॉट बहुत ज़्यादा दिन चलता नहीं है। कोई भी एक टाइप सिंगिंग ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अच्छा, वी हैव टू जनरेशन्स है, ठीक है। आज आपकी जो जनरेशन है या जो रील्स बहुत वायरल होती है एंड कहीं ना कहीं गाना उससे पॉपुलर भी होता है। फिर Right. कुछ लोग हम यूट्यूब पे जाते हैं, रील पे हमें 30 सेकंड सुन के अच्छा लगता है। कई गाने मैंने भी ऐसे किए, मैंने कहा अच्छा ये गाना है। पुराने गाने आते हैं रील्स पे, दे गेट वायरल एंड द न्यूअर जनरेशन दे कम टू नो अबाउट दैट सॉन्ग। Right. सो हाउ यू बोथ सी दिस ट्रेंड? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि पुराने गाने को रीमेक होना चाहिए, पुराना गाना आना चाहिए, रील्स बने, सब कुछ हो, क्योंकि न्यू जनरेशन जो कम से कम जान तो सकेगा कि हु वाज द सिंगर एंड हु वाज द कंपोजर, हु वाज द लिरिक्स राइटर एंड व्हाट वाज द सिचुएशन दैट टाइम। तो जो भी है ये सब जानकारी न्यू जनरेशन्स को मिलेगा ये रीमेक के ज़रिए और जिस तरह से रिक्रिएट करते हैं तो उस तरह से। तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ हमेशा इसके लिए। बट आई थिंक के ओरिजिनल जो सिंगर गाए थे, अगर वो कैपेबल है तो उससे गवाना चाहिए, कि नहीं तो कंपैरिजन हो जाता है। पहले ही कंपैरिजन होता है कि भाई वो क्या गाए थे, आप क्या गा रहे हो। तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बेटर या खराब, दोनों ही खराब है। आपने उससे बेटर गा दिया, ये भी खराब है, और आप उससे खराब गाए तो खराब है ही है। तो कंपैरिजन वहाँ पे रहेगा। वो उस कंपैरिजन को हटाने के लिए आपको पुराने सिंगर से ही गवा देना चाहिए। अगर वो कैपेबल है, अभी भी वो गा सकते हैं, तो उससे गवा देना। जैसे मैंने अभी गाया तुझे देखा तो ये जाना सनम, दोबारा मैंने गाया, सारेगामा से रिलीज़ हुआ, तो मैंने गा दिया, लोगों को बहुत पसंद आया, सब हो रहा है। तो इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। एक पहले एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि उस सिंगर का जो फैन फॉलोइंग है वो आपके पास आ जाता है। सबसे पहली बात, इतना बड़ा जो फैन फॉलोइंग है तो वो सबसे पहले आपके पास आ जाता है। ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है सबसे पहले। दूसरी बात है आपका कंपैरिजन नहीं होता है। तीसरी बात है वो एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। चलो पहले क्या, आज से 40 साल पहले गाया था, देखो आज भी गा रहा है, ये एक समथिंग न्यू। तो कई सारे प्लस पॉइंट्स है अगर ओरिजिनल सिंगर से आप दोबारा उसको रिकॉर्ड करते हो। ऐसा नहीं कि पहले जो गाया था उसका सैंपल आप लगा दिया और उसके ऊपर म्यूज़िक कर लिया। नो, उसको दोबारा गवा। जैसे मैंने आँख मारे गाया था, मैंने दोबारा गाया था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, मैंने दोबारा गाया था। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैंने दोबारा गाया था। ऐसा नहीं कि मेरा गाना लेके वो लोग लगा दिए। नो, आई सैंग। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करेंगे ना तो हमेशा वो प्लस पॉइंट में रहेगा। तभी वो हिट भी हुआ, नहीं तो अदरवाइज लोग उसको ट्रोल ही करते हैं। जैसे कि गाने का बेड़ा गर्क कर दिया कि क्यों इस गाने को टच किया। बिकॉज कहीं ना कहीं वो गाने, हमने कई सारे गाने देखे, कई सारे गानों के, उन गानों के साथ एक इमोशन जो जुड़ा है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज लाइक, मतलब आप बड़े हुए उन गानों के साथ, तो हम वो कंपैरिजन हो जाता है कंपैरिजन पहले ही, वही सबसे पहले माइनस पॉइंट हो जाता है। तो रील कल्चर आपको तो अच्छा ही लगता हो? I mean, I guess, yeah, I'm not much of an Instagrammer. Like, Oh, you're not? no, I'm not. And which is like an odd one out kind of thing, because everybody is like, why don't you post more? Why don't you do reels? Like, this is trending, that is trending. But then the artistic side of me is like, okay, but nobody's really enjoying the song. They're not. They're just like going and making the reels because there is a nice hook step to it, right? And so now, as artists are kind of like focused on that. Like, we got to make a banger that is like up tempo, and we got to make, in the music video, we need to have like a solid choreography, which then would get all the audience to, you know, get viral and then create those 30 seconds or a minute song. एक छोटा सा बात मैं बोल देता हूँ, छोटा सा बीच में मेरे अंदर आया, उसको भूल जाऊंगा मैं। क्या होता है कि रील्स जो बनता है ना, रील्स के जरिए जिस आदमी या जिस औरत या जिस लड़की या जिस लड़का वो रील्स को बनाते हैं, वो अपना पॉपुलैरिटी के लिए आपका गाना इस्तेमाल करते हैं। वो फिर उस गाने के ऊपर वो दिखाता है कि मैं क्या किया। तो रील्स में आपका फ़ायदा नहीं होता है, ये फ़ायदा होता है उनका जो उस रील्स को बनाते हैं। मेरे दिल में ये आया, मैंने बोलूँ कि भाई हाँ, वो कैसे डांस किया, वो कैसे छत से लटक गया, वो कैसे रोमांस किया, कैसे वो अपना चीज़ दिखाते हैं उसमें। देखिए सॉन्ग जो वो यूज करते हैं उसमें वो तो कोई भी आप समझ लो, सिंगर का नाम रहता आप है। यहाँ से अंधेरी जाओगे, आप बस लोगे या ऑटो लोगे या टैक्सी लोगे या ट्रेन लोगे, ये तो डिपेंड्स ऑन यू। बट यू आर गोइंग टू अंधेरी, मतलब आप अपने आप को अंधेरी में पहुँचा रहे हो। तो वो लोग भी वही कर रहा है, किसी के जरिए जा रहा है, चाहे वो इसका गाना ले ले, मेरा गाना ले ले, किसी का और का गाना ले ले, लेकिन वो दिखा तो रहे अपने आप को।
दिखा अपने आप को रहे एंड अपना जो कैलिबर है उसको दिखाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करता है। आई थिंक रील्स में बहुत ज़्यादा फायदा कुछ नहीं होता है, हाँ नंबर ऑफ वो सब बढ़ जाता है, क्या सब होता है ना आजकल यूट्यूब में वो सब बढ़ It जाता है। gives you, yeah, it gives you opportunity and a platform to obviously get that exposure, and which I'm gonna try next time with my song. I'm usually, you I'm should. usually You like, should do your song with your song. yes. You So should make reels I have with that your song, your all the own notes, original. like choreography, a nice, That will you help. know, That will track, help. which is gonna get everybody like up and going. So that is in my mind, and that's gonna be coming out soon. अच्छा, अभी जो आपका वाला सॉन्ग था, Right. उसका जो शूट, जो पूरा प्रोसेस था, वो यहाँ पे हुआ या अमेरिका में हुआ? In LA. And that Okay. was it was filmed by my sister, Annabelle. She directed the music video. And we had an Australian actor playing the opposite, my co-actor. His name is Connor Barton. And it was really, He's Australian hero, huh? yeah, he's an Australian Hero. actor. So it was really fun. We wanted to keep it as simple as possible, again, keep that connection within the 9 to 5 sort of concept. So as you can see in the music video, we're in the office, and then from there we kind of just go out, have fun, and just enjoy ourselves, which is basically the message of the song. So yeah. अच्छा, अब ये बताइए, टॉकिंग अबाउट द फादर डॉटर बॉन्ड कोलैबोरेशन जो आपने की, उससे इतर कितनी डांट पड़ती थी पापा से? That, I mean, he doesn't scold or anything like that. He's You were a just, good child. पढ़ते थे? I mean, he's like, yeah, he's the fun one, But that being said, yeah, he would then, it's like he would treat us as adults. He would sit down and talk to us and tell us why we're wrong. And that's like the worst. Because like if you slap, then it's fine. It's like whatever. But when you sit and then you make them feel like, oh, like the lectures and everything, no offense. But I would get like so sleepy. And then the lectures are the ones that are, like, this is how we used to live back in our days, and this is how we used to care about stuff, and you don't care about things. And then so those are the kind of things that that is the definition of dot. It's not anything like slapping or anything like that. It's more of a lecture. No, not like that. It's more of a lecture. क्योंकि they are already बड़े हो चुके हैं एंड सबसे बड़ी बात है कि इनको खुद का समझ, मैं तो समझता हूँ कि इंडिया के जो बच्चे हैं ना, उन बच्चे से कुछ कम नहीं है। इनका जो सोच है, इनका जो समझ है, काफ़ी फेयर है। बहुत ही मेरे को प्राउड फील होता है इसके लिए कि भाई इनका सोच ऐसा है। इनके माइंड में इतना दया है, इतना माया है, जो वेरी रेयर दिखने को मिलता है। रास्ते में कोई बिल्ली भी चले जाए ना तो ये रो पड़ते हैं वहाँ पे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे चीज़ें, ये हमको अच्छा लगता है देख के। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों के अंदर वो ह्यूमैनिटी अभी भी बरकरार है। तो दैट्स वाई मेरे को बहुत ज़्यादा डांटना नहीं पड़ता है। मैं कुछ समझा देता हूँ तो ये समझ जाते हैं बात को। सिंगिंग में भी, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे ऐसा जनरल लाइफ में हो, उसको समझा देता हूँ कि भाई ये करने से ये हो सकता है, तो तुरंत उसको समझ जाते हैं। उसको उस हिसाब से वो लोग अकॉर्डिंग टू दैट करते हैं काज। अच्छा, अभी जिस तरह से इनका करियर जा रहा है, सो यू आर सेटिस्फाइड, हैप्पी, ठीक डायरेक्शन में जा रही है? 100%। आई नो कि शी विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग एंड उस तरह से उनका अपब्रिंगिंग है। सो शी इज़ गोइंग करेक्ट, एकदम करेक्टली वो जा रहे हैं। एंड जिस तरह से पागल की तरह यहाँ पे, जैसे लोग यहाँ पे हमने देखा बहुत सारा कि लोग चांस पाने के लिए पागल की तरह जो अपने आप को ख़राब कर डालते हैं, इन लोगों में वो सब चीज़ें है ही नहीं। मैंने वही सिखाया इन लोगों को कि बोला टाइम विल कम, जब तुम्हारा समय आएगा सब तुमको सब होगा, डोंट वरी अबाउट। उसके लिए डिफ्यूज़ हो जाना, बोलता है ना कि हम थोड़ा सा ब्रेक हो गया, ये हो गया, नो। मैं कम गाना गाता हूँ तो मेरे को देखा कभी ब्रेक होते हुए? 1 मिनट के लिए लोग नहीं देखा मेरे को कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि भाई हमारे को कम गाना फिल्मों में क्यों नहीं मिल रहा है। पूछो, 1 मिनट के लिए नहीं। मैं समझता हूँ कि मैंने जो करके रखा ये बहुत बड़ी चीज़ है, और जो होना है वो होगा, जिसको नहीं होना है वो नहीं होगा। तो काहे को हम मन खराब करें, मन कुछ करे। तो जैसा चलता रहे, ये लोग सही दिशा में जा रहे हैं,
और जो जिस तरह से वो चल रहा है एकदम करेक्ट दिशा में जा रहा है एंड आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट. He is happy. That's a big thing because you have a legacy behind you, Absolutely. and I think आपसे उम्मीदें और ज़्यादा होंगी. Oh क्योंकि yeah. अगर कोई फ्रेश सिंगर आता है तो शायद उससे जितनी उम्मीदें होती हैं वो उससे कहीं ना ज़्यादा, बिकॉज कुमार सानू की बेटी अगर गा रही हैं तो पीपल विल कहीं ना कहीं दिमाग में एक रहता है कि अरे ये तो अच्छा ही गाएगी या मतलब एक्सपेक्टेशंस आर मोर. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड Thank होप you. फॉर Thank you मोर very much. कोलैबोरेशंस. और अगली बार हिंदी में आप गाएंगी, जी. ठीक है, और ज़्यादा हिंदी में गाएंगे. You will come to know. और ज़्यादा बहुत जल्दी आपको सुनाई देगा. और ज़्यादा ज़्यादा अगर 2 लाइन कुछ कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग, बिकॉज अच्छा। आपके साथ बैठा हूँ और गाना नहीं सुना तो देखिए अभी ये क्लाउडी वेदर है तो उसमें मैं बोल सकता हूँ सुन 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 बरसात की धुन सुन, सुन 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 बरसात की धुन सुन, बादल गरजा सिमट गए हम, बिजली चमकी लिपट गए हम, बादल गरजा सिमट गए हम, बिजली चमकी लिपट गए हम, ये है कितना अच्छा शगुन, सुन 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 बरसात की धुन सुन. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग विद यू. अभी मेरा एक गाना रिलीज हुआ कुछ दिन पहले, सावन का महीना बारिश के ऊपर ही. मेरा फैंस बहुत पसंद कर रहा है इसको. हमसा नहीं, सावन का महीना है बारिश की झड़ी है, आजा मेरे पास तू दूर क्यों खड़ी है. क्या बात. तो Yes, ये हम definitely. अपने आप ही हमें वर्डिंग्स जो हैं वो दिमाग ये- में ये- आते हैं. ये This होता is है, the- ये होता This है. is the beauty of music Yes, that this is the has beauty of soul. आगे क्या बोलने वाला है पता चल जाता है. Yes. That is So the I thing. hope अगली बार जब आप गाना बनाओ तो उस गाने के साथ भी ऐसे ही. Absolutely. Fingers crossed. Thank you. Wishing you all the Thank best. you so Thank much. you very much. Thank you you. so much. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.